Hello dear students. Today we are going to start the first chapter, that is chemical reactions and equations. But before starting with the chapter, let us go through some basic concepts related to this. See, in our day-to-day life, we come across so many events, and if we have to categorize those events into two main categories or two main groups, then we can classify them as physical change either, or it may be a chemical change. So physical changes are mostly reversible, but there are some physical changes which are irreversible also. See, what are physical changes, how they take place? So basically any type of physical change undergoes, or it happens due to change in either temperature or pressure, like physical पैरामीटर्स जो है, सो उसमें जो चेंजेस होते हैं इसकी वजह से फिजिकल चेंजेस होते हैं, राइट. सो द नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसका वो हम ले सकते हैं. सी, मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, राइट. सो कटिंग ऑफ पेपर कैन बी अ फिजिकल चेंज बिकॉज इन फिजिकल चेंज देयर इज नो चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम, राइट. But cutting of paper is an irreversible physical change. So got it? Physical changes may be reversible or they are reversible also. These are the some examples of physical change. Now the next category is a main that we are going to focus in this chapter is chemical change. Actually chemical changes occur due to chemical reaction. So when there is a chemical reaction takes place, a chemical change occur. Any type of chemical change can be identified with the help of some points. When any chemical change takes place, either any one of these take place, either there is a change in temperature, either there is change in state of the substance, that is physical state में जो change होता है, then change in color और evolution of gas. इनमें से कोई एक या फिर एक से ज्यादा events एक साथ हो तब भी we call it as a chemical change, and chemical change occur when chemical reaction takes place, right. So we are going to see with the help of some examples reactions I am going to tell you. Also we are going to discuss some important questions कि इस पे questions कैसे पूछे जाते हैं, right. So these all concepts we are going to cover in today's lecture. So here we are going to discuss this activity 1.1 in your textbook. What they have said that you have to take one magnesium ribbon. When you take this magnesium ribbon, you have to clean it first with the help of sandpaper. So यहाँ पे एक question आपको पूछा जाता है कि why we have to clean the magnesium ribbon with the help of sandpaper. See, magnesium is a metal. When this magnesium gets exposed to air, it reacts with the oxygen which is present in the air, and its oxide is formed, that is magnesium oxide. Simple reaction takes place here. You can express this, और just see बच्चों यहाँ पे ना आपको सब जो केमिकल चेंजेस है इनके रिएक्शंस भी आपको बताने आने चाहिए, लिखने आने चाहिए, राइट. एंड वी कैन राइट दिस रिएक्शन एज Mg plus O2 gives MgO. This is our normal equation. Now we have to balance it. हम ये सब लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर पे, डू नॉट वरी. सो यहाँ पे यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, एंड दिस इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस here. So this magnesium oxide which is formed on the surface of the metal will interrupt with the reaction, and in order to avoid that we'll first rub this magnesium ribbon and we'll remove the magnesium oxide का जो layer है, and then we will burn this magnesium का जो strip है, magnesium ribbon है, with the help of, पहले हम hold करेंगे with the help of pair of tongs, ऐसे जो होता है. So इसको हम जब बर्न करेंगे, आफ्टर द बर्निंग व्हाट हैपन्स, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व. यहाँ पे हम ऐसा ऑब्जर्व करेंगे, ये एक्टिविटी हम आप अपने स्कूल्स में भी सीखने वाले हैं. योर टीचर इज गोइंग टू शो दिस. सो यहाँ पे व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन, इट बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम. सो यहाँ पे इसका आंसर जो है व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपके जो एग्जाम्स होते हैं इसमें सभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड रहते हैं.
सो ऐसा कुछ भी पार्ट हमें क्वेश्चन, जो हमारा टेक्स्ट बुक है, सी एनसीईआरटी जो आपका टेक्स्ट बुक है, इट इज योर सेवियर। इसमें जो कुछ भी लिखा है दैट यू आर गोइंग टू रिसाइट, दैट यू आर गोइंग टू लर्न, दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड। सो ऐसा कुछ भी पार्ट हम छोड़ने वाले नहीं है कि विच कैन बी आस्क इन योर एग्जाम, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन बताया कि साइंटिफिक रीजन जैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाई वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन, व्हाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, ये एक क्वेश्चन हो गया। जब हम उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। वो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि इट बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, राइट। सो दिस इज द एक्टिविटी, मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है विच इज व्हाइटिश ग्रेइश इन कलर। ये पहला हमारा एक्सपेरिमेंट या फिर एक्टिविटी है विच शोज केमिकल चेंज। यहां पे हमने देखा कि टोटली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, मैग्नीशियम मेटल था, उसका जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, completely new substance, that is magnesium oxide got formed, right? So now we are going to discuss this second activity. Take lead nitrate solution in a test tube. हमें क्या करना है, लीड नाइट्रेट लेना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, राइट। एंड जब हम ये दोनों मिक्स करते हैं तो क्या, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऐसा क्वेश्चन है। सो व्हेन अगेन यहाँ पे एक रिएक्शन बनती है, व्हेन दिस लीड नाइट्रेट, आपको सभी जो केमिकल्स है जितने भी आएंगे मैक्सिमम पॉसिबल, मैं सब आपको एग्जांपल्स इस चैप्टर में जो जो आते हैं आ सकते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल। हाँ, सो यहाँ पे है पहला हमारा जो केमिकल, इट इज लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 ट्वाइस। ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, दैट वी हैव लर्न्ड हाउ द केमिकल फॉर्मूले आर फॉर्म्ड, राइट। सो इसका सॉल्यूशन हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया। अनदर टेस्ट, उसमें हमने अनदर केमिकल ऐड किया, पोटेशियम आयोडाइड की, जिसका फॉर्मूला है Ki। सो व्हेन दीज टू रिएक्ट, व्हाट विल हैपन, इसमें इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ रिएक्शन। सी, रिएक्शन का एक बेसिक फंडा क्या है आपको पता है, यू नेवर हैव टू लर्न द रिएक्शन। आप कभी भी रिएक्शन आपको लर्न नहीं करनी है, बिकॉज एक भी इधर उधर हुआ वर्ड या फिर जैसे बैलेंसिंग हम करते हैं, एक भी नंबर या फिर वर्ड इधर उधर हुआ तो पूरा का पूरा डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होता है, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, राइट। सो हम कभी भी केमिकल रिएक्शन लर्न नहीं करेंगे, हम उसको तैयार करेंगे। सो हाउ टू फॉर्म अ केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन लिखनी कैसी है, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ना, इसको एक टाइप है, हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम तैयार करते हैं तो क्या होता है, उसको जो आयन्स है वो एक्सचेंज होते हैं। सो बेसिकली यू ऑल नो देयर आर two types of ions in any compound. First are positively charged cations and negatively charged anions are there, right? So इसमें Pb पे है पॉजिटिव चार्ज, NO3 में है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे K पे है पॉजिटिव चार्ज, I पे है नेगेटिव चार्ज। सो ये जो कटायन अनायन है ना, उसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी उसके सर, ऐसे जैसे होता है ना, तो वैसे ही इसका कटायन इसके अनायन के साथ रिएक्ट करता है और ये कटायन इस अनायन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। अब आप ही बताइए कंपाउंड्स कौन से होंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। सो इसमें जो कंपाउंड के फॉर्मूले आने वाले हैं, ये फॉर्मूले आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं कि अभी तो मैंने आपको आधा आंसर बता दिया है, राइट। ये वाला इससे रिएक्ट होगा, ये वाला इससे, बट व्हाट आर द फॉर्मूले, यू आर गोइंग टू कमेंट। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे जो एक सॉल्यूशन है दूसरा भी सॉल्यूशन है, इन दोनों का रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे येलो कलर्ड वाला लीड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, विच इज अ प्रेसिपिटेट। ये है लिक्विड, ये है लिक्विड, दिस इज सॉलिड। सो व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट,
So normally a precipitate is a insoluble substance which is formed when either two liquids react with each other. नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे लिक्विड्स ही हमेशा हो, समटाइम्स लिक्विड एंड गैसेस का भी रिएक्शन होके हमें एक सॉलिड सब्सटेंस मिलता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. सो यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन है? लीड आयोडाइड. उसका कलर क्या है? येलो कलर. सो ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि what happens when lead nitrate solution is added to potassium iodide solution. Explain your answer with the help of suitable balanced chemical reaction. So यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन लर्न करने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं. हम केमिकल रिएक्शन तैयार करेंगे. कैसे तैयार करना है मैंने आपको बताया है. आगे जाके इस चैप्टर में हम बाकी भी डिटेल सीखने वाले हैं. डू नॉट वरी एट ऑल. सो बेसिकली ये इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको समझ में आया, राइट? सो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल एक्टिविटी ही है आपके टेक्स्ट बुक की, जिसमें है क्यों हमें जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं. जिंक ग्रैन्यूल्स को जब कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें क्या डालना है हमको? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. आइदर इनमें से कोई भी एसिड हमको मिक्स करना है. देन व्हाट विल हैपन? What changes do you observe? ऐसे हमें पूछा है. So when we take the sulfuric acid and zinc granule, they both react with each other. अभी अगेन ये रिएक्शन हमको तैयार करनी है. See here, हमें रिएक्शन तैयार करनी है. क्या है हमारे पास? जिंक ग्रैन्यूल्स है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4. सो यहाँ पे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि इसकी टोपी उसके सर होता है. यहाँ पे क्या होता है? सी दिस इज मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एंड दिस इज लेस रिएक्टिव. हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक नाम की रिएक्शन है, वो होती है. दिस जिंक टेक्स हाइड्रोजन का प्लेस एंड इट रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स प्लेस, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा? ZnSO4 प्लस H2. समझे? So this is the reaction when sulfuric acid reacts with zinc. Now what will happen? Again आपको मुझे बताना है what will happen when the zinc will react with HCl. यहाँ पे दिया है ना, either sulfuric acid लो या फिर HCl लो. सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन मैंने आपको बताया ऐसे होती है. What will happen? What will be the reaction? What will be the product of this reaction when hydrochloric acid and zinc granule will react with each other? ये आपको मुझे बताना है, राइट? विद द हेल्प हाइड्रोजन नॉर्मली H2 के फॉर्म में लिखते हैं हम. हाइड्रोजन सिर्फ H ऐसा कभी नहीं लिखा जाता. इट इज ऑलवेज रिटन एज H2. सो कीप दैट इन माइंड एंड आप मुझे आंसर बताइए कि कैसे हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं. सो यहाँ पे इफ वी टच द बीकर वी विल फील दैट इट इज हॉट. सो यहाँ पे क्या हुआ? मैंने इनिशियल एकदम पहले स्लाइड में जो बताया था, either there is a change in temperature or there is change in color, right? Total new substance is formed. So in the previous example, color change was there. In this example, there is an evolution of gas also. हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है ना. सो हाइड्रोजन गैस ये भी होता, इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं. या फिर चेंज इन टेम्परेचर. ये हॉट लगता है जब हम इस कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे, विल फील दैट इट इज हॉट. सो देयर इज इवोल्यूशन, देयर इज राइज इन टेम्परेचर और देयर इज चेंज इन टेम्परेचर. सो ये दोनों का भी एग्जाम्पल हम बता सकता है. इट is an example that change in temperature occurs when chemical reaction takes place or there is an evolution of gas when chemical reaction takes place. ये दोनों का ही example हम इसमें बता सकते हैं. So to summarize today's lecture, we have seen that a chemical reaction takes place when there is change in state of a substance. हाँ, इसका एग्जाम्पल चेंज इन स्टेट वाला एग्जाम्पल हम बर्निंग ऑफ कैंडल का दे सकते हैं. सी व्हेन वी बर्न अ कैंडल देन व्हाट हैपेंस. सी कौन सा भी सब्सटेंस हो, जब हम उसको बर्न करते हैं तो बेसिकली टू सब्सटेंसेस वी गेट. वन इज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड अनदर वन इज CO2. सो बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें क्या हो जाता है, टोटल मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में हमें मिला है
CO2 गैस के फॉर्म में मिला है, कैंडल कैसा था, वैक्स कैसा था, इनिशियली इट वॉज इन सॉलिड स्टेट, सो देर इज अ चेंज इन स्टेट। सो ये एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वैक्स या फिर कैंडल हम बोल सकते हैं, ये इसका हम बता सकते हैं। चेंज इन कलर वाला हमने अभी देखा, लीड आयोडाइड वाला। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, अभी जिंक ग्रैन्यूल एंड सल्फ्यूरिक एसिड वाला हमने देखा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, वही सेम एग्जाम्पल हमने देखा। सो इन सारी एग्जाम्पल्स में, इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ये देखा कि आइदर कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा changes होते हैं into the reactant. What are reactants then? Reactants are the substances which take part in the chemical reaction, right? So the substances before the chemical reaction takes place, उसको हम बोलते हैं reactants. And newly formed substances जो होते हैं उसको हम बोलते हैं products. So इन सारे या फिर कोई एक जो events होती है वो होती है when chemical reaction takes place, right? So this is the end of today's topic जो हम डिस्कस करने वाले थे। अभी इस टॉपिक पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस फॉर मी। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ लीड आयोडाइड? सभी के आंसर, जब अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से सुना होगा तो आपको सारे आंसर्स इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इफ द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? Why do we have to clean the magnesium ribbon with sandpaper before using it? So these are some questions जिसके आंसर्स आपको रिसाइट करने हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो वेरी वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, है ना। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।